Prophetessa Productions. Prophetessa Productions.
such beautiful and memorable evening. It's an occasion to celebrate success, honor hard work, and appreciate the journey of those who turned their dream into reality. मोहतरम मेहमानान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ उस्ताज़ कराम और 55th कॉमन के चमकते सितारों, आप सबको दिल की अता गहराइयों से CPI के एनुअल डिनर में खुशामदीद कहते हैं। हाज़रीन महफिल, आज की ये शाम सिर्फ एक तकरीब नहीं है, बल्कि उम्मीद, मेहनत और कामयाबी के सफर का एक ऐसा रोशन बाब है। आज की शाम उन सितारों के नाम है जिन्होंने रातें जागकर ख्वाबों को हकीकत में बदला, जिन्होंने थकन को हौसले से शिकस्त दी और बिलाशुबा जैसा कि कहा गया कि चलता रहे जो आपला पाई के बावजूद मंजिल का मुस्तहिक वही सहरा नवीन है। It's a moment of pride for the entire CPI family to witness and celebrate the success of our newly elected officers in CSS 2025, whose determination and relentless efforts have finally borne through. Please, big hand for the high achievers of CPI. इस पुरबकार तकरीब का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के पाक नाम से करते हैं, जो दिलों के राज जानता है, जिसने इंसान को इज्जत बख्शी और इल्म अता किया और अंधेरों से रास्ता दिखाया। आइए अदब एहतराम के साथ कलाम इलाही सुनते हैं। बिस्मिल्लाह उजाड़ दे मेरी मट्टी को दर बदर कर दे, मेरी ज़मीन मेरा आखिरी हवाला है, सो मैं रहूंगा इसको बार-बार कर। हाज़रीन महफिल, वतन से मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि इस पाकिस्तान को हासिल करने में हमें बेइंतहा कुर्बानियों से सामना करना पड़ा। इसलिए हम पर फर्ज है कि इसकी इज्जत और एहतराम करें। जब वतन की मोहब्बत की बात आती है तो फिर आवाज़ भी एक होती है, जज्बा भी एक होता है, दिल भी एक साथ रखते हैं और ख्वाब भी एक ही होते हैं। और CPI हमेशा से मुल्क पाकिस्तान की खिदमत के लिए इन ख्वाबों को ताबीर देने के लिए कोशिश कर रहा है। ये वक्त है सेलिब्रेट करने का, उन कामयाबियों को, उन जज्बों को, उस मोहब्बत को जो पाकिस्तान के लिए हमारे दिल में मौजूद है। मैं तमाम हाज़रीन महफिल से गुजारिश करूंगा कि कौमी तराने के तक़द्दुस में अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाएं। ध्यान भाई नीचे। CPI सिर्फ एक इदारा नहीं बल्कि मेहनत, अज़म, इस्तिकामत और लगन की एक रोशन दास्तान है। ये वो सफ़र है जो एक छोटे से मुद्दे से शुरू हुआ, मगर आज पाकिस्तान भर के हज़ारों उम्मीदवारों के लिए रहनुमाई और कामयाबी की अलामत है। ये ख्वाब डॉक्टर नूरुल्लाह ने लिखा था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का ख्वाब
یہاں پر نوجوانوں کو امتحانات کی پرلیمنری کمپیٹیٹیو ایگزام معیاری تیاری فراہم کی جا سکے گی، جہاں ان کی صلاحیتوں کو نکھارا جائے اور جہاں خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا حوصلہ دیا جائے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں موڑا گیا۔ سی پی آئی کے بی ایڈ کی اگر بات کریں تو اس کا خواب ڈاکٹر نور المراد کی طرف سے دیکھا گیا، لیکن اس ویژن کو مزید وسعت دینے میں اور اسے ہزاروں طلباء تک پہنچانے اور اسے کامیابی کی نئی بلندیوں تک لے جانے میں سر معظم خان لودھی صاحب کا کردار نہایت قابل قدر ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا سی ایس ایس کا اسٹوڈنٹ ہے جنہوں نے سر معظم خان لودھی صاحب سے انسپائریشن یا گائیڈنس حاصل نہ کی۔ ہم دعا کو ہیں کہ یہ ادارہ اسی طرح کامیابیوں کے نئے سفر طے کرتا رہے، نوجوانوں کے خوابوں کو ترغیب دیتا رہے اور پاکستان کے مستقبل کو روشن بنانے میں مؤثر کردار ادا کرتا رہے۔ اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ دعوت دینا چاہوں گا ایکس آئی جی پولیس ملک خدا بخش عوان صاحب کو کہ وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لائیں اور ہمارے ادارے کے حوالے سے، ہمارے ادارے کا جو ویژن ہے اس کے حوالے سے اپنے تاثرات کا ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Distinguished dignitaries, Mertale Board, Chief Guest, بسم اللہ thank you distinguished guests, the visionaries, the reformers and moral sentinels of our age, the modern echoes of Fatima Jinnah, Ruth Paul and the torch bearers of enlightenment, the architects of conscience and custodians of intellectual civilization. آپ تمام کو میری طرف سے اور اس ادارے کی طرف سے millions of congratulations. Thank you. Clapping for all of you. Primarily, it's a watershed moment of significant importance. It is an intersection between struggle and transcendence, between endurance and emergence, between anonymity to immortality. It is a sacred threshold where ambition evolves into a legacy. This evening, a luminous and defining moment, and this gathering is not merely a ceremony, it is metaphysical. A rare convergence where preservance meets providence, where preparation encounters destiny, where vision crystallizes into reality, a dream come true. And I stand here before you not merely to deliver rhetorical words, but to witness a magnificent metamorphosis unfolding before the history itself. Tonight, futures are not being predicted. They are already written on the walls. And my compliments also
for the invisible architects of the triumph, a tribute to silent forces behind your greatness. That is your parents, your mothers, whose tears became unseen reservoir of your strength, your fathers, who sacrificed finances to make this dream possible, your mentors, who transformed your potential into precision, and friends who kept you alive and motivated during all storms and uncertainty. Let us remember, no achievement is solitary. Every triumph is collective symphony of sacrifice, faith, endurance, and love. And tonight belongs to the achievers, and it's a journey from aspiration to authority. Power is not a privilege, it's a sacred accountability also. Authority is not domination, it is responsibility before humanity and history. And leadership is not status, it's a service primarily under scrutiny of conscience. And you are entering now a new profession, which is a living bloodstream of the nation and state. And history will not merely ask what position you hold, it will ask definitely what justice you uphold to the people, what suffering did you alleviate, what integrity did you preserve when compromise was an temptation. And part 3 is, to those who did not succeed this time, my compliments for them also for making an attempt, but do not translate this moment as defeat. For failure, in its highest intellectual meaning, it's a refinement. And you have endured, whatever you have endured is not a loss, but a deeper initiation of resilience, a restructuring of your strength, a calibration of your purpose, a confrontation with self that precedes all greatness. Remember this timeless truth. History does not immortalize those who never fell or failed. It immortalizes those who rose strong after falling. It always teaches a lesson. Stand not diminished, stand transformed, because your story has not ended. It has merely entered into its most transformative chapter. Because there are many slips between tongue and the lip, and there are many twists and turns in life. You may be down this time, but Allah Almighty smiles and says, my gentleman, this was not your turn. Wait for a while. And this is a much better future is waiting for you. And my congratulations for those who have really attempted this first time. For the institution of CEPI, it's a crucible where futures are forged. Today, we honor not merely the individuals, but the institution that cultivated that extraordinary excellence in them. This is not merely an academy or institute, it's a sanctuary of discipline, a republican of ambition, a laboratory of national leadership, where rough talents are transformed into visionaries, like Plato's and Aristotle's of the 21st century. But something beyond results, it's a higher civilizational calling. Nations are not transformed merely through the infrastructure, policy, and economic statistics.
It requires guardians of conscience, leaders of incorruptible integrity, public servants whose morality is stronger than temptation. Because ultimately, the measure of greatness is not the power required, but humanity preserved while exercising it. And it's a continuum to resolve. And the success, thus is not generally, it goes beyond the linear lines, it's evolution. And so, it's an evening of elevation and honor and national hope. Your participation symbolizes national aspirations and individual achievements. The triumph of discipline over distraction, the victory of perseverance over despair, the supremacy of intellect and limitation, the enduring power of dreams fortified by sacrifices of many. But it's all the dawn of destiny for you, where legacies begin and nations are shaped. And to every achiever gathered here tonight, understand the magnitude of this moment. You are not merely securing careers. You are shaping the administrative soul of a nation. You are authoring the first chapter of your legacy. And history one day will not merely remember that you succeeded. It will remember what you contributed and you made to make your nation great. Again, congratulations to all achievers, every parent, every mentor, every resilient soul present here tonight. May your journey lead not merely towards the accomplishment of targets, but towards honor, not merely towards recognition, but towards immortality through service to humanity and through services to the poor people of Pakistan. Thank you. نے ہزاروں نوجوانوں کے خوابوں کو نئی سمت عطا کی. میں اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز
We warmly welcome you, sir. Please join us. ہم اکٹھے ہیں اور سب دوستوں کی کامیابی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کامیابی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور ناکامی بھی اللہ کی طرف سے ہے. بہت سارے دوستوں سے میں شناسا ہوں. ان کا یہ جو سفر ہے اس سفر سے بھی مجھے آگے ہی ہے. اور ان کے ساتھ بہت سارے دوسرے ساتھی تھے جنہوں نے بہت محنت کی. ان میں صلاحیت بھی بہت تھی. ہو سکتا ہے کہ کچھ میں صلاحیت یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے زیادہ ہو, لیکن اللہ نے انہیں وہ کامیابی نہیں دی جو کامیابی یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دی. یہ کامیابی لیکن اٹ سیلف ایک اچیومنٹ نہیں ہے. یہ کامیابی امانت ہے پاکستان کے عوام کی, پاکستان کے لوگوں کی, بانیان پاکستان کی. وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا, اور وہ خواب کیا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو سماجی حقوق دیے جائیں, معاشی حقوق دیے جائیں, سیاسی حقوق دیے جائیں, ان کا معیار زندگی بلند کیا جائے اور ان کو کمیٹی آف نیشنز میں ایک اعلیٰ مقام دلایا جائے. یہ ذمہ داری 1947 سے لے کر آج تک جتنی بھی جنریشن آف سول سروینٹس ان سب کے ذمہ تھی, اور ان میں سے کچھ نے بخوبی ادا بھی. اگر آپ 1947 کے کانٹیکسٹ میں جائیں تو پاکستان ایک مفلوق الحال ملک کے طور پر مل جاتا ہے. تو یہ آپ جیسے خالد صاحب ادھر تشریف رکھتے ہیں اور یہ عبد الجان صاحب ادھر تشریف رکھتے ہیں, ان جیسے بہت سارے سول سروینٹس, بہت سارے سیاسی لیڈر, اعجاز شفیع صاحب ادھر موجود ہیں, ایم پی ہیں, پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں, ان جیسے بہت سارے سیاسی رہنماؤں نے, بیوروکریٹس نے مل کے پاکستان کی تعمیر میں حصہ لیا. اور آج یہ جو پاکستان ہمیں نظر آ رہا ہے تمام تر کمیوں کے باوجود, کوتاہیوں کے باوجود, اس پاکستان سے بہت مختلف ہے جو 1947 میں ہمیں ملا تھا. لیکن یہ جو جنریشن آف سول سروینٹ ہے جو ابھی ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, اور جس نے ابھی 30 سے 40 سال آگے اس ملک کی ترقی کا بیڑا اٹھایا, ان پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ ملک اب 25 کروڑ کا ملک ہے. یہ ملک اب ایک ایٹمی طاقت ہے, اور یہ ملک ابھی بھی ایک تیسری دنیا کا ملک سمجھا جاتا ہے, غریب ملک سمجھا جاتا ہے. اس کو تیسری دنیا سے پہلی دنیا میں لے کے آنا, ایک فرسٹ ورلڈ کنٹری بنانا, ایک ایسا ملک بنانا جو اپنے سائز کے مطابق, اگر ہم دنیا میں سائز کے اعتبار سے G5 میں ہیں تو اکانومی کے لحاظ سے ہمیں G8 میں ہونا چاہیے یا G10 میں ہونا چاہیے. یہ ذمہ داری میری بھی ہے, یہ ذمہ داری آپ کی بھی ہے. جو خواب بانیان پاکستان نے دیکھے تھے تو ان کے خواب کی تعبیر 1947 میں ہمیں مل چکی ہے. آج ہم نئے خواب دیکھتے ہیں اور ان خوابوں کی تعبیر کی جستجو کرتے ہیں, بالکل اسی طرح جس طرح سے آپ سب لوگوں نے CSS کا خواب دیکھا, ملک کے سب سے بڑے امتحان کو پاس کرنے کا خواب دیکھا, اس کے لیے خوب محنت کی, اور آج اس خواب کی تعبیر آپ کے سامنے ہے. اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں, ہماری یہ ایکسپیکٹیشن ہے آپ سے کہ آپ لوگ پاکستان کے بارے میں بھی خواب دیکھیں اور اس خواب کی تعبیر میں اسی تندہی کے ساتھ, اسی لگن کے ساتھ محنت کریں اور کردار ادا کریں. مجھے پورا یقین ہے کہ ہم پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. وہاں جہاں ہم فیل ہوئے, مجھے پوری امید ہے کہ آپ کامیاب ہوں. سول سروینٹس کو مینٹورز کی ضرورت ہے. آج جو ہماری چوائس آف گیسٹ تھی, ہم نے یہ خصوصی خیال رکھا ہے کہ آپ کا انٹریکشن ایسے لوگوں سے کروایا جائے جن لوگوں نے بڑی ڈسٹنکشن کے ساتھ سول سروسز کی. خالد محمود صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ہمارے درمیان, پری گورنر ہیں, انکم ٹیکس سروس جسے ہم ریجن کر کے IRS کا نام دیا گیا, اس سے ان کا تعلق ہے. ہمارا جو پریمیئر ٹریننگ انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ انشاءاللہ آپ چند مہینوں میں آپ بھی جائیں گے, سول سروسز اکیڈمی, اس کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے ہیں. پھر ہمارا جو پریمیئر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ دوسرا ہے جہاں سے بھی 2-3 سال پہلے میں نے نیشنل مینجمنٹ کورس کیا تھا, جو ہائیسٹ ٹریننگ کورس ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک پالیسی, اس کے ریکٹر کے طور پہ بھی خالد صاحب
پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں آئے اور انہوں نے بائی چوائس بلوچستان میں ایک لمبا عرصہ کام کیا. میرے علم میں کوئی دوسرا سول سرونٹ ایسا نہیں ہے جنہوں نے ان سے زیادہ بلوچستان میں خدمات کا انجام دی ہوں. اس حوالے سے ہمیں بلوچستان کا اسپیشلسٹ بھی کہتے ہیں. لیکن ان کی ایک اور بڑی خصوصیت ہے کہ بلوچستان میں سرو کرنے والے لوگ عموماً آپ جانتے ہیں کہ سی ایس ایس میں کامیابی کے لیے اپنے بچوں کے ڈومیسائل بلوچستان سے جاتے ہیں. ان کے کسی بچے کا ڈومیسائل بلوچستان سے نہیں ہے جو ان کی انٹیگریٹی اور کردار کا ثبوت ہے. لیکن اتنے اچھے کریئر کے باوجود سول سروسز پہ ان کا جو عوامی تعارف ہے جس سے یہ پہچانے جاتے ہیں وہ بطور سول سرونٹ نہیں ہے بلکہ آپ بڑے نامور لکھاری بھی ہیں, کالم نگار ہیں, اور ابھی ریسنٹلی یہ بہت مزے ہوئے تجزیہ کار کا روپ بھی دھار چکے ہیں اور ہم ان سے رہنمائی لیتے رہتے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور تشریف لایا. مجھے پتہ ہے کہ آپ کی طبیعت بھی پچھلے 3-4 دنوں سے کافی ناساز تھی, اس کے باوجود آپ یہاں پہ تشریف لائے. اور یہ عبدالقبول جان صاحب بھی ہمارے لیے پبلک سروس کے ایک بہت بڑے لیڈر کی حیثیت ہے. اسی طرح سے ہم نے جو چوائس آف گیسٹ میں تشریف لا چکے ہیں سر جسٹس انوار الحق صاحب, یہ چیف جسٹس رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, اور اس سے پہلے یہ جیلوں میں فوجداری پریکٹس کیا کرتے تھے. ہم نے انہیں بطور چیف جسٹس بھی دیکھا ہے. ایک جج کا آئیڈیل کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں, لیکن اگر آپ اس آئیڈیل کنڈکٹ کی مجسم صورت دیکھنی ہو تو جسٹس انوار الحق اس کی جیتی جاگتی مثال ہے. پروفیسر ہمایوں صاحب میرے بھی مینٹور ہیں, استاد ہیں, اور انہوں نے بے شمار لوگوں کو تیار کیا. اگر پاکستان میں جورسپروڈنس کے لحاظ سے کوئی بڑا نام ہے تو پروفیسر ہمایوں صاحب ہیں. آج ہم نے ان سارے لوگوں کو اس لیے یہاں پہ دعوت دی ہے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس ملک کی خدمت کیسے کی جاتی ہے. اور یہ جو ہم ہر وقت یہ رونا روتے رہتے ہیں اس ملک میں لیڈرشپ کرائسس ہے, انٹیگریٹی کا کرائسس ہے, تو یہ وہ رول ماڈل ہیں جنہیں اگر ہم فالو کریں اور ان کی تربیت کے مطابق, ان کی زندگی کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو تشکیل دیں تو یقیناً ہم پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. جسٹس انوار صاحب, پروفیسر ہمایوں صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہماری دعوت میں یہاں تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ. اور صبر کا سبق بھی دیکھوں. اس موقع پر میں ان امیدواروں کا ذکر ضرور کروں گا جو کامیاب نہ ہو سکے, کیونکہ اگر کامیابیاں ہماری ہیں تو ہم ناکامیابیوں کو بھی ہاں کر لیں گے. ایک گردش ایام ہمیں رہی بہت ہے, کچھ خواب ایسے تھے کہ بکھرنے کے نہیں تھے. سو ناکامیاں استحکام نہیں ہوتی بلکہ ایک نئے سفر کی ابتدا ہوتی, اور ہمیشہ کی طرح سی پی آئی آج بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے. بے شک وہ آج یہاں پر موجود نہیں ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ وہ اگلی جو تقریب ہوگی وہ اس میں ضرور ہوں گے. تو ایک دفعہ ہم تمام اسپائرنٹس کے حوصلے خواب دیکھا اور اس خواب کو حقیقت میں بھی بدلا اور ایک کامیابی کی نئی داستان لکھی. یہ اقبال کے وہ شہین ہیں جن کے بارے میں بھی اقبال نے کہا تھا کہ نہیں تیرا نشیمن کسرے سلطانی کے گنبد, تو شہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی جگہ پر. ان نوجوانوں نے واقعی ہی یہ ثابت کر دیا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہوگی, اور انہوں نے اپنی خودی کو اتنا بلند کر دیا کہ اپنی تقدیر یہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. Ladies and gentlemen, now it's time to acknowledge their dedication, resilience and remarkable journey. I would like to invite them one by one onto the stage to share their experience and words of inspiration with all of us. ہمارے ساتھ ینگ آفیسرز موجود ہیں 55th کامن کے. اب میں ایک ایک کر کے ان کو جو ہے وہ اسٹیج پر دعوت دوں گا. ہمارے سب سے پہلے ینگ آفیسر میرے بڑے بھائی ارشاد الطاف صاحب اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جب کسی نے کہا تھا کہ سم پیپل ڈونٹ جسٹ اچیو سکسیس دے ڈیفائن اٹ, اور ایک شعر جو ان کے بارے میں مجھے یاد آتا ہے کہ یہ آرزو ہے صدا دے کوئی سکھائے مجھے, میرا نصیب کئی رات میں بلائے مجھے, کسی کو حوصلہ درکار ہو تو مجھ سے ملے, کسی کو روشنی درکار ہو تو جلائے ملے. رشاد صاحب سی پی آئی کی پہچان ہے اور سی
2025 and allocated in this prestigious PSP group. Please welcome Sir Nishana. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर मौजम का, महमूद का, कि उन्होंने ये डिनर अरेंज किया और सबको बोलने का मौका मिला, इंटरेक्ट करने का मौका मिला। इसके बाद मुख्तसर टाइम में मेरे पास बहुत सारी बातें करने को, लेकिन क्योंकि मेरी अम्मी यहाँ मौजूद हैं तो मैं सबसे पहले अपनी अम्मी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अपने भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरे कोई यहाँ मौजूद नहीं है, उनका शुक्रिया, मेरी पूरी फैमिली, मेरी बहनें, सबका शुक्रिया। मेरी जर्नी 2022 से स्टार्ट हुई 2022 से, और उसके बाद 4 अटेम्प्ट मैंने दी, 2 CSS की, 2 BMS की, और हर दफ़ा 700 प्लस करने के बावजूद कुछ न कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मैं एलोकेशन नहीं ले सका, कभी इंटरव्यू में और कभी किसी एक सब्जेक्ट की वजह से। तो इस साल अल्लाह का बड़ा करम है, और इस साल मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा CEPI का कि मैं 2023 से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो कुछ सीखा वो इस साल मैंने इम्प्लीमेंट किया, और उसका रिजल्ट मुझे इंटरव्यू में भी मिला, और उसका रिजल्ट मुझे रिव्यू पार्ट में भी मिला। तो बहुत शुक्रिया सर मौजम, मैं इन लोगों का। मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि कोई एक दिन आएगा जैसे मैं इन लोगों के एहसानात का और इन लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है उनका शुक्रिया अदा करूँगा। इसमें किसी किस्म की कोई एग्जैजरेशन नहीं है, मैं बड़े दिल से कहता हूँ कि मैं इस जर्नी में जब यहाँ पहुँचा हूँ तो मेरी फैमिली के बाद इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें CEPI का सर नुमान मेरे भाई की तरह 2017 से हम एक रूम में रहे हैं, तो हमने नाकामियाँ भी इकट्ठे देखी हैं और कामयाबियाँ भी इकट्ठे इंजॉय कर रहे हैं। सर आपका शुक्रिया, सलाम सर आपका शुक्रिया, और तमाम लोगों का शुक्रिया, तमाम स्टूडेंट्स का शुक्रिया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हमेशा कहते थे सर किसी का हो ना हो, हमें ये पता है कि आपका हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह CEPI का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर से एक रिक्वेस्ट है यहाँ खड़े होकर कि जितने अच्छे आप टीचर हैं उतने अच्छे मार्केटर भी बन जाए, ताकि हम CEPI को ग्रो करता देखें। अल्लाह ताला इसे मज़ीद तरक्की दे, अल्लाह ताला CEPI को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। दरमियान मौजूद हैं 55th कॉमन से इनका ताल्लुक होगा उसामा शहजाद साहब को वेलकम करते हैं। आपने CSS 2025 में 15वीं पोजीशन हासिल की और प्रेस्टीजियस Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Almighty Allah has been very kind, and it was not without Almighty Allah's help, most blessings, and the support of my teachers, my parents, and even the friends as well, that this has happened, Alhamdulillah. और कोई शक नहीं कि मुश्किल जर्नी होती है, हम में से बहुत सारे लोग जो यहाँ मौजूद हैं उन्होंने एक लंबा अर्सा इस जर्नी को दिया, लेकिन all is well, it ends well, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पे सर हनीफ खसूसन मौजूद हैं, सर हनीफ के साथ हमारे बहुत सारे सेशंस हुए, और सर थैंक यू सो मच, आपने जो विजडम हमें इम्पार्ट की, और उससे भी बढ़ के जो आपका कॉन्स्टेंट एम्फेसिस था कि अगर आप सर्विस में जाते हैं तो कोशिश करिएगा कि जस्ट अनदर एडिशन ना हो, बल्कि एक पॉजिटिव वैल्यू एडिशन हो। तो सर आई प्रॉमिस कि इंशाल्लाह जो आपने गाइड किया है वो महज 30 मिनट के इंटरव्यू तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि जो आगे 30-35 साल की सर्विस है इंशाल्लाह उस सारे में उम्मीद रहेगा। और आप सारों का शुक्रिया जो यहाँ आए हैं, और जहाँ जो चंद एस्पायरेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने अगले सालों में कोई अटेम्प्ट्स देने हैं, और उनके लिए मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पास पढ़ा था जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, तो मैं वही नरेट कर सकता हूँ। और वो अल्फाज इस तरह से हैं कि two roads diverged in the wood and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. May you all want to make the difference. Thank you so much. फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में जो है एजुकेशन हासिल की। I wish please come Today, if I talk about my journey, first of all, I would like to especially thanks to Allah Almighty, because Allah has been very, very kind to me, because I got my desired education in foreign services of Pakistan in my first attempt. Today, it is very, very difficult
Thank you all. सिक्योरिटी प्रयास में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव Assalamualaikum everyone. First of all, I want to thank you CPI and Sport Management for arranging such a beautiful event in the honor of CSS 2025 qualifiers. I also want to thank CPI for helping me in interview preparation. CPI के पास मैं तब आई थी जब मेरा PMS का इंटरव्यू फेल हो गया था and I came to Sir Mozam and Sir Sanan and they helped me identify my mistakes. इन्होंने मेरी पूरी जर्नी में मेरी CSS इंटरव्यू की प्रिपरेशन की पूरी जर्नी में मेरी मदद की. ख़ास तौर पे सर सनान ने मुझे एक पूरी गाइडलाइन फराहम की जिसके ज़रिए से मैं पैसिव एजुकेशन हासिल कर सकी. आज मैं इस प्लेटफॉर्म में खड़ी हूँ. आई बिलोंग टू साउथ पंजाब लिया, तो मैं उनके बारे में भी कुछ कहना चाहती हूँ, खासतौर पर यूथ एंड यंग वुमेन ऑफ लिया एंड साउथ पंजाब. हमारे यहाँ पे बिकॉज लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड एक्सपोजर की वजह से बहुत सारे नौजवान अपने ख्वाबों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं. इवन when I was preparing for my CSS exam after my father's death, I didn't have any family support. Rather, I faced opposition from the family for appearing in the exam. Yet I chose not to give up. And today I am standing here in front of you all as an example. So मैं उन नौजवानों को कहना चाहती हूँ कि आपकी आज की स्ट्रगल कल के लिए दूसरों के लिए जो इंस्पिरेशन साबित हो सकती है. Thank you all. 71st in Pakistan, and Pakistan just took service in the nation security here. Assalamualaikum everyone. First of all, Sir Mozam Lodi, and Huda and Sir Karim, thank you so much for having me to be here. शायद सब कह रहे हैं बहुत मुबारकबाद, तो मैं सबको कहती हूँ ये मेरी नहीं है मुबारकबाद, ये मेरे वालिदैन की है और मेरे भाई बहन की है, मेरे मामा की है, जिन्होंने इस 6 साल की लंबी जर्नी में कभी ये फील नहीं होने दिया कि कितना टाइम गुजर गया है, कितने हाईज एंड लोज मेरी लाइफ में आए हैं. ये ख्वाब असल में मेरा और मेरे नाना का था. वो चाहते थे कि उनकी फैमिली से कोई एक सिविल सर्वेंट बने और जो एक औरतों के लिए मिसाल बने कि औरतें कुछ कर सकती हैं. आई एम द फर्स्ट लेडी ऑफिसर इन माई फैमिली. तो जब मुझे पहले तो पता चला कि CSS कुछ होता है, जब मैंने इसकी रिसर्च की मुझे पता चला कि 17,000 बच्चे होते हैं और कुछ चंद बच्चों का CSS हो जाता है. तो मैं पैनिक कर गई और मैं उनके पास गई और मैंने कहा कि अब मुझसे तो नहीं होगा, कहाँ 17,000 कहाँ एक क्या आता है. तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की. उन्होंने मुझे कहा कि जितो रब को मंगो तो चोखा मंगो, रब की ज़ात बड़ी करीम है, जितो देन ते आए थे कब तो अरशद तक पहुँचा देंगे. मैंने तैयारी शुरू की. ये मेरी 4th अटेम्प्ट थी, बट क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट फेज होता है आपका लाइफ का, अगर आपकी फैमिली साथ ना हो, मेंटोर साथ ना हो, तो बहुत डिफिकल्ट है एक स्टूडेंट के लिए सर्वाइव करना, इवन इस चीज़ को अचीव करना. तो इसमें सर मौजम लोधी और मैडम के साथ मेरा बहुत कम इंटरेक्शन रहा, पर जितना रहा मुझे लगता है कि अगर मैं शायद CPI में ना आती तो मुझे कुछ चीज़ों का पता ना चलता और मैं यहाँ ना आज खड़ी होती. तो आज ये मेरी सक्सेस सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे पेरेंट्स की है, जो एग्जाम सेंटर के बाहर 5-5 घंटे बैठा करते थे कि कब वो बाहर आएगी और उससे पूछे कि कैसा एग्जाम हुआ. मेरे भाई की है जो जिससे मुझे बहुत सपोर्ट किया है, वो इमोशनल टाइम फॉर मी फ्रॉम द पास्ट 6 years और आज भी. तो मैं भाई की बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे मामू, मेरी दूसरे फैमिली मेम्बर्स, सर मौजम. आज उनको देख के मैं मुस्कुरा रही हूँ. जो मैं पहले दिन आई थी सर्विस तो उन्होंने कहा मैडम ईजी होकर हो जाएगा. तो आई गेस वो जो सपोर्ट सिस्टम होता है ना, अगर आपको वो मिल जाए तो यू कैन गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ. तो मैं इन सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ. और अभी तो ये सिर्फ एक कामयाबी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको आगे लेकर चलना है. तो मुझे अभी भी सबकी दुआओं की ज़रूरत है. तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं जो मेरा ये सफ़र है ये अच्छा गुजरेगा. सो थैंक यू सो मच टू ऑल माई टीचर्स
چاہوں گا نماز سیف اللہ جو کہ IRS میں ایلوکیٹ ہو. السلام علیکم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سر گوتم مودی صاحب کا اینڈ میم نور الہدا صاحبہ کا جنہوں نے اس بیوٹیفل ایونٹ کو آرگنائز کیا اور جہاں پہ ہم آج اپنے جو تاثرات ہیں اس کا اظہار کر رہے ہیں. اینڈ اس کے علاوہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جن کی کرم نوازی کی بدولت میں آج اس اسٹیج پر موجود ہوں اور میں اپنی سکسیس کا کریڈٹ اپنے والدین اپنی فیملی اور خاص طور پر اپنے بھائیوں کو دینا چاہوں گا کیونکہ ان کی بدولت میں یہ ناممکن کام کو ممکن کر پایا. کیونکہ میں جس ایریا سے بلانگ کرتا ہوں تو اس ایریا میں جنرل پرسیپشن یہی ہے کہ یہ جو سپیریئر سروسز کی سیٹیں ہوتی ہیں یہ اپر پنجاب والے یا وہ لوگ لے جاتے ہیں جو لامس کے گریجویٹ ہوتے ہیں یا فارن گریجویٹس ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں نے مجھے کانفیڈینس دیا اور انہوں نے کہا کہ یو ول ڈیفینیٹلی ڈو اٹ. تو میں نے ان کے دیے گئے کانفیڈنس کی وجہ سے میں نے الحمدللہ پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور آگے بڑھتا چلا. اینڈ اگین میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور اس کے علاوہ میں سر حنیف گول صاحب کی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم نے اپنی اس جو نئی سٹی کی آ رہی ہے یا آنے والی جو جین زی فار ایگزامپل وہ جو سول سرونٹس آ رہے ہیں تو وہ ایک ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں. تو سر میں انشاءاللہ اپنے بہاف میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ ویلیو ایڈیشن بھی کروں گا اور میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے ملک کو ان تمام ترقی کی بلندیوں پہ لے کے جا سکوں جہاں پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری نہیں بلکہ فرسٹ ورلڈ کنٹری کے طور پہ جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ. اینڈ ایٹ دی اینڈ تھینک یو سو مچ. It was my first attempt of CSS and I will just say that I was always confident कि मैं अच्छा लिखती हूँ और for the written exam I did not have much worry but I am a shy person naturally and I always have problem in speaking. So मुझे पता था कि interview जो है मेरा इतना आसानी से नहीं होगा पास. So that's why I came to CPI and Sir Mozum and Sir Sanal guided me a lot and helped me in the interview process and alhamdulillah I was then able to pass and get allocated in Pakistan Products and Ground Service. I will again thank Allah Almighty and also my family who has also supported me and the members of CPI. Thank you so much. Respected officers, میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ تالیاں اپنی بجا کے رکھیں کیونکہ اس تقریب میں ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان بھی موجود ہیں اور وہ ہمارے لیے اور اس قوم کا سرمایہ بھی ہیں. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چاہوں گا کہ ہم بھی ان سے کچھ سیکھیں اور ان کے قیمتی خیالات کے بارے میں جانیں. بلا شبہ ان کا تعارف میرے قد سے بہت اونچا ہے لیکن میں جسارت کروں گا کہ they should grace the stage with their presence. میں سب سے پہلے دعوت دینا چاہوں گا ہمارے معزز مہمان ایک نہایت باوقار مدبر شخصیت سر خالد محمود صاحب. سر خالد محمود صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹر جنرل سول سروس اکیڈمی اپنے سروس دے چکے ہیں. اس کے علاوہ وہ چیئرمین PCB بھی رہ چکے ہیں اور بہت سارے پاکستان کے اداروں میں اپنے بہت سارا جہاں دیتے رہے ہیں. پلیز بگ ہینڈ فار اپنی ویلیو اور انسائٹ ہمارے ساتھ شیئر کریں. بات کرنے کا موقع دیا. میں بہت خوش ہو رہا تھا نوجوان بچوں کی باتیں سن کے کیونکہ یہ وہ کچھ ہے جو ہماری قوم کا سرمایہ ہے ہمارا مستقبل ہے
उस वक्त सरकारी सीनियर एहलकार के मुसलमान जो थे वो गए थे किसी के अहदेदारों के पास, इनादार के पास गए, दूसरे लोग गए, जनाब ये तो बहुत बड़ा तोहफा है, अगर आप इसको आपको मिल रहा है तो आप और उनके बच्चे से उन्होंने ये कबूल किया नाम जो जमींदार है तो मोहम्मद अली साहब से वो उन्होंने इसके बाद कबूल किया। उसके बाद बजट बनाने की बारी आई तो इतना ज़बरदस्त बजट उन्होंने बनाया कि जितने बड़े बड़े सरमायादार के हेतु टाटा और बिरला और पार्टी उनको ठीक ठाक नंबर का टैक्स लगाया और ऐसा टैक्स लगाया जिसकी वजह से वो बड़े परेशान हुए कि ये तो बड़ी अजीब मुसीबत है, जाति के मुसलमान साथ होंगे इस तरह की हरकतें करेंगे तो हमें ये नहीं मानना चाहिए। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि बेहतर है कि हम अलहदा हो जाए, क्योंकि अलहदा होने के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना है हमारी माली हैसियत सियासी हालात से कहा जाता है कि वो किस्त नहीं होती थी कागज जोड़ने के लिए तो वो पार्टी और क्या क्या इस्तेमाल होते थे। उस वक्त चौधरी मोहम्मद अली के जो सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने पाकिस्तान के और उन्होंने बिल्कुल बताए ना होने के बावजूद इस हुकूमत को सहारा दिया, कायम किया, बड़े अच्छे अच्छे काम किए। मुझे वक्त नहीं है इससे से बड़े नाम हमें आपसे सुना होगा कि साल में क्या कुछ काम हुआ है। एक रेगिस्तान के साथ उसको नासिस्तान में बदला गया। एक तबुल हैदर नाम के जो देता जो सुनाई और चलता था। इसी तरह और भी बड़े नाम हैं जिन्होंने लेकिन वो आजकल का ज़माना आ गया है कि कहा जाता है कि गवर्नमेंट सर्विस किया है, गवर्नमेंट सर्विस किया है। इन्हीं सरकारी अधिकारों ने उस हुकूमत को अपने पैरों में खड़ा किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि हमारे ये परिवार बच्चे बच्चियाँ जिनको हमारे सामने आए थे उन्होंने बातें की, ये उन लोगों के नक्शे कदम पर चले और पाकिस्तान को जमीन के साथ आसमान में ले हमारी दुआएं बहुत। इसके बाद हमारे नेक्स्ट डिग्नेटरी जिनका ताल्लुक शोभा कानून से आप एजुकेटर भी हैं, पाकिस्तान के बहुत से बड़े इदारों में कानून की तालीम भी दे चुके हैं। करंटली आप पाकिस्तान लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर हिमायत। Thank you very much for this opportunity. I am here with a great sense of gratitude and appreciation. And I am fully aware that one person like me may not be able to do justice to my assignment. Auria Mahmood Jahan Saab is here, or Mahmood my mentor, Nazar Hakeem sir, Adil Bhai and Fazial Hakeem. I'm very happy to listen to the youngsters who are about to embark upon a new journey on different challenging assignments. And how to say, मुझे तो आप लोगों को सुन के देख के बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा कि I must establish the ownership of this country कि मैं भी इस country से belong करता हूँ with a sense of pride because the future as it looks lies in very brilliant, hopefully safe hands. अगर मुझे अपना fear express करना हो तो maybe I will borrow Aneek Musa and myself. We have been together in the law college. He was student there and I was only an employee of that law school. So I will say कि जो Weberian concept है revolving around the bureaucracy, उसके अंदर एक ये भी पहलू है कि law, sorry to say law, according to Max Weber, remains an instrument of domination. But with formalization and rationalization. अब
फॉर्मुलाइजेशन और रैशनलाइजेशन तो बहुत करनी आ जाती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो मेरे साथ जैसा एक सादा लोग शहरी होता है वो डोमिनेट रहता है। और हमारा जो बहुत ही ग्लेरिंग शानदार एक्सपीरियंस था when the country was got independence, चौधरी मोहम्मद अली और उनके 3 और साथी जिन्होंने कायद के साथ, चूँकि लियाकत अली खान साहब के मतलब यही भी था कि वो बजट को नहीं डील कर सकेंगे, मगर उन्होंने हमें बहुत बड़ी सक्सेस दी, पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, ईस्ट और वेस्ट को इकट्ठा किया और एक बड़ी शानदार रवायात वाली सर्विसेज की। मगर उसके बाद ये भी हुआ कि हमारे आम आदमी को रिलीफ नहीं मिली। और when I traveled around in different cultures, तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि आपके हाथ में दुनिया को दोज़ख और जन्नत बनाने का फार्मूला, the same world will become heaven if you start taking interest in the well-being of the next person. जो आदमी आपके पास दादरसी लेने आएगा, मैं सॉरी टू से अपनी पूरी जिंदगी में किसी दफ्तर से कोई काम नहीं करा सकता। थैंक्स टू माई फ्रेंड्स के जो फोन करके या माई स्टाफ जो कुछ और करके तो फाइनली एट सम स्टेज कुछ करवा लेते। तो जो बंदा आपके पास आता है, आप प्लीज उसकी कदर करें, आप उसके लिए रिलीफ का, जैसा कि आप देखने में रखते हैं और आप हैं भी इंशाल्लाह। और ये भी बात ठीक है जो आपने जनरेशन की बात की कि ये जो अब जनरेशन आ रही है ये दोबारा से पुरानी रवायात को, सुरक्षा रवायात को उठा लेगी और पहले से भी बेहतर जगहों के ऊपर अपना इस हमारे हमें लेकर जाएगी। देखिए, मैं और यह महबूब साहब के सामने ये बात करते हुए डर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है, मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। जो गुनाह और सवाब और इबादत की गलतियां हैं वो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हैं, अजर भी देगा, माफ भी कर देगा। लेकिन हुकूकुल इबाद का सुनना है कि उसको माफ करने का इख्तियार सिर्फ उसके हाथ में है जिसका हक मारा जाता है। मैं आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू से नेक्स्ट इज राइट और रॉन्ग, मगर जो स्टेट के साथ ज्यादती होती है, जब स्टेट का हक मारा जाता है, इबादत का हक तो खुदा माफ कर देगा, हुकूकुल इबाद का हक हम निंदे करेंगे, कौन पड़ेंगे, वो माफ कर देंगे। जो स्टेट का हक जहाँ पे मारा जाता है वहाँ पे तो कोई एंटिटी नहीं है माफ करने की। और मैं सोचता हूँ कि कहाँ इसका जिक्र है कि आप अपनी रियासत को नुकसान पहुँचाते जाओ और आपको कोई माफ करने वाला होगा। माफ करने वाली एंटिटी का कोई जिक्र नहीं करता। ये आपने अपनी जन्नत खुद बना ली। एंड मैं दुआ करूँ कि आप कामयाब हो। मैं एक्चुअली उम्मीद रखता हूँ कि आप कामयाब होंगे। यू आर ब्यूटीफुल पीपल, वेरी टैलेंटेड। आपकी गुफ्तगू सुन के एक बिल्कुल तबीयत को हौसला मिला। आई विश यू गुड लक। और मुझे यहाँ आकर खुशी हुई कि ये अदारा इतने सक्सेसफुल बंदे पैदा कर रहा है। थैंक यू फॉर। इसके बाद हमारे नेक्स्ट गेस्ट मुल्की मायानाज शख्सियत जिनका तारुफ नहायत तवील है, लेकिन मुख्तसर बात करूँगा कि आप कॉलमिस्ट भी हैं, पोएट, राइटर, जर्नलिस्ट और एक मौलवी भी है। आपका ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से रहा। आपको ये आज़ाद भी हासिल है कि आपने बहुत सारी किताबें और मशहूर टीवी सीरियल्स भी लिखे। लाहौर की तज़ीन व आराइश में भी आपका किरदार है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम ओलिया। उन्नीस सौ 92 में मैं मखदूम में डिप्टी कमिश्नर था, तो मेरा प्ले था ज़मीन ज़्यादा, उसको PTV अवार्ड में था। तो दिलदार भट्टी जो था उससे मैं इंटरव्यू लिया, दोस्त थे, तो उसने कहा ये आप वक्त कैसे निकाल लेते हो लिखने पढ़ने के लिए। मैंने कहा उससे नहीं पूछते जो गोल्फ खेलता है 3-4 घंटे के लिए, जो रात को ब्रिज की महफिल लगाता है, जो और की ड्यूटी करते हैं, तो ये नॉन सर्विस करने जाते हैं और पढ़ने लिखने को नॉन सर्विस नहीं करते। मैं सिविल सर्विस के बारे में इंतहाई खूबसूरत बात की खालिद साहब ने भी और हमारे उस्ताद साहब ने भी
किसी ने वो रेट नहीं किया और उसकी बोर्ड ये सिविल सर्विस थी जो चलती चली आ रही थी। अपनी जिंदगी के अंदर मैंने देखा है कि सियासतदान आप कब तक जिंदगी गुजार के चले जाते हैं, फाइल पड़ी नहीं आती। जब हमारे साथ आते थे 5 से 7 साल लगते थे मेरे काम करने के लिए। अगर प्रोडक्शन का रास्ता दिखाता था सिविल बंदा, अगर जानकारी का रास्ता दिखाता था कोई और नहीं, केवल आप हैं। आप ही की सूरत-हाल है जो कि इस मुल्क को कायम दायम रखती है, आप ही उनको दबा करते हैं, कोई और नहीं है, क्योंकि दुनिया का अपना सारा काम आपने करना होगा। मसला सिर्फ एक है, आप आज कामयाब होके एक नई जिंदगी में दाखिल हो रहे हो, आप एक शानदार किस्म की स्लेट हो, लेकिन इस सिविल सर्विस अकेडमी से पहले भी उसके बाद भी बेशुमार ऐसे रवैये हैं आपके ऊपर वारद हो जाएंगे जिनको डी लर्न करने की जरूरत है। मैंने 24 साल एक ऐसे सूबे में गुजारे हैं और अपनी ऑप्शन पे मैं गया था, जवाहरलाल हमारी अकेडमी में आया था, बलूचिस्तान जिसको कहते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि हमने गुज़श्ता 1773 से लेके कॉर्नर बैलेंस से लेके अब तक हमने जो रवैया सीखा था वो था क्या। हमें कहा गया था 1773 में कि तुम 5 से 7 लाख लोग जो सिविल सर्विस और फौज के अंदर हो, ये भव्य वतन हो, और बाकी 35 करोड़ लोग हैं ये उस वक्त भव्य वतन होंगे अनलेस द क्रू अदरवाइज। ये रवैया आज तक कायम है। हमारी मीटिंग्स के अंदर, हमारी बातों के अंदर हम पहले ये समझते ही नहीं है कि ये बलोच, ये पठान, ये आम सादा सा आदमी, इसको कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन जरूर है इस जमीन के साथ करते हैं। कभी कभी मैं उनसे कहता था, तब हम बॉर्डर के साथ मैं बहुत ऐसी बातें आपके साथ रखना चाह रहा हूं कि जो हमें डी लर्न करनी है। एक सादा सा पठान हमारे सामने आ गया जिसके ऊपर हम पूरा पंजाब के अंदर ड्यूरल लाइन की बातें करते, सादा सा आदमी वहां था, चमन के उस तरफ रहता था, मैं चमन में हम उस वक्त बयान कर रहे थे, स्टीम नहीं करते। उससे तक तुम्हें ड्यूरल लाइन अंग्रेज तोहफे में देंगे। मेरी 3 नस्ल घूम दी है, ठीक है मानते हैं, तुम भी बचपन की बोल लगाते हो, मैं भी 10 की बोल लगाता हूँ, तुम भी यहाँ संदाता हो, लेकिन मेरी इस बात को एहतराम करो कि मेरा मशीन ये सारा कुछ इलाका रेत छीन के यहाँ लाइन लगाई थी, हमने घूम दिया, तुमने घूम नहीं दिया, मिल जाते हो। लेकिन मैं कस्टोडियन हूँ उस शख्स का जिसका नाम वो था डायर था, जो कप्तान के तौर पर लड़ा था। मैं उसका कस्टोडियन हूँ, मैं उसकी पूरी लाइन में 1901 में जहाँ जब लगा था तो इसको ठीक करके रखते थे लोकल से, इसलिए उनको निकेल डाली गई थी। Writ of the government, writ of the state, writ of the justice होती है भाई, इंसाफ की रिट क्रांति लाती है। Writ of the state जो सबसे अहम बात होती है कि स्टेट को हमने उस डेरे में बदल दिया होगा। मैं जैसे डिप्टी कमिश्नर हूँ, एक आदमी मार कर गया तब 5 आदमी हमने मारे गए, स्टेट कायम नहीं होती है, पता कैसे चलेगा स्टेट एग्जिस्ट करती है। ये अंग्रेज के लिए लफ्ज़ है, अंग्रेज के लिए तोहफे हैं जो हमारे घर चले आ रहे हैं। आप इंपॉर्टेंट है। मैं कोरिया की मिसाल अक्सर देता हूँ, लोग कहते हैं जब मैं घूम लगता है स्टेट को लेके गए थे 5 ईयर प्लान से कुछ नहीं होता। कोरिया अनस्टेबल डेमोक्रेसी, 29 साल में 25 प्राइम मिनिस्टर, 4 मुख्तलिफ किस्म के सूबे जिनके अंदर लड़ाई की इंतहा आप सोच नहीं सकते। अपना एक सदर जनरल उसको अपने जनरलों ने कदर कर दी थी, लेकिन आर्टिकल 90 से लेके आर्टिकल 93 तक 3 आर्टिकल है सिविल सर्विस के, उसको उन्होंने लेने दिया। वो स्टील फ्रेम काम किया, रखा क्यों हमारे के लिए सियासतदान आए तो कर दिया, उस स्टील फ्रेम में उसको काम रखा और अच्छा जाता। ये तमाम जितने भी लोग हैं, मैं सियासत के अंदर भी रहा हूँ, जर्नलिज्म भी, बाकी जितने भी, ये सारे लोग आपकी बुनियाद के ऊपर आगे बढ़ते हैं, आप उनको इफेक्टिव बनाते हैं। ये सब लोग सब ऐसे आते हैं, एक आदमी उनके प्रॉब्लम की लिस्ट होती है और दूसरे आदमी उनके सोल्यूशन की लिस्ट होती है, लेकिन आप समझाना है कि नहीं,
ना ये लोगों के मसाइल हैं, ना ये लोगों के प्रॉब्लम का हल है। ये उस वक्त मुमकिन है कि जब आप उनके अंदर जिंदा रहेंगे। पहला बुनियादी तौर पर जिन्हें मालूम था, ठीक है, पहला बुनियादी तौर पर आपका ये चीज होता है कि आप उनके साथ कैसे रहते हैं। सिर्फ एक छोटी सी जाती मिसाल देकर, मैं चाबी में डिप्टी कमिश्नर था, चाबी उन लोगों में से जिसमें आज उस शहर के अंदर 3 दिन तक PLA का कंट्रोल रहा। आपको नहीं पता ना, खबरें ट्रैक हो गया पाकिस्तान के अंदर, हम बहुत आसानी से खबरें रोक ले, 3 दिन तक रहा है, कंटिन्यू कर रहा है कंट्रोल हो गया। ईद की नमाज PLA के हैंडल कर दिया। मैं जहां उस वक्त रिटायर हुआ था 1990 के बाद हुआ था, पूरे चाबी में 3 दिन तक हड़ताल रही थी। RCG हाईवे ब्लॉक हुई थी, मैं ना उनकी जुबान जानता था, ना मैं बलोच था, ना मैं भोरी बोलता था, पंजाबी था। वो पंजाबी जो पंजाबी इस्तेमाल है जिसको गाली दी जाती है। सिर्फ एक बात, उनके अंदर रहना सीखेंगे। आपको डील लर्न करना है बहुत कुछ, महल्लेदारों ने भी बात कर सिखाया होगा, इलाके के लोगों ने, खुद सिविल सर्विस के अंदर भी लोग आपको सिखाएंगे, कैबिनेट के अंदर। आप बड़े कमाल, अब तुम उस मुकाम पर पहुंच गए हो, कब रिटायरमेंट तक तुम इसी की हिफाजत करने नौकरी, जिसने नौकरी की हिफाजत की है उसने पाकिस्तान के अंदर सिविल सर्विस को दबाव बर्बाद किया है, लेकिन जिसने उसूल की हिफाजत की है उसने सिविल सर्विस। बहुत काबिल एहतराम हालत महमूद साहब, हमायूं एहसान साहब, आप सबके हम सब लोगों के बेशुमार एहसानात थे, और आप जहाँ इकट्ठे बैठे हैं मुझे इस बात पर इतने से की हो रहा है, एक कदम आगे चलने में मुश्किल लगता है। मैं बहुत मशहूर हूँ जनाब हनीफ गुल साहब का, जिनकी वसादत से आज मौका मिला मुझे उन बच्चों से बात करने का जो हमारा जेन्युइनली वाकई असली में मुस्तक़बिल, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी एकेडमी की मदद से, अपने असातिज़ा की मदद से, अपने वालिदैन के जज्बे से आज उस मंजिल को पाया है जिसको वो मंजिल समझते थे कि ये हमारी मंजिल है कि हमें इसे एहसास करना है। लेकिन मैं उनको ये पूरी खबर देना चाहता हूँ, ये मंजिल नहीं है, मंजिल भी बहुत आगे है। आपने उस मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाया है, अभी आपने उस मंजिल को अचीव करना है, जहाँ जाके हमें लगे कि हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम महफूज लोग हैं, हम बाइज्जत लोग हैं, हमें इज्जत करनी आती है, हमें इज्जत करवाना। जब हमारे अंदर ये शऊर पैदा हो जाएगा तो मैं यकीन से समझता हूँ कि हमारे ये बच्चे जो आज सस्ते के साथ जा रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला और इस मुल्क में, मैं कोई तकलीफ करने वाला आदमी पूरी जज के बारे में कहते हैं कि उसके कान बड़े हो जाते हैं, मुंह छोटा हो जाता है, मेरा ज़्यादा छोटा हो गया है, मैं सुन सकता हूँ, बोल नहीं जाना सकता, लेकिन मैं एक बात अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करना चाहता हूँ। अपनी 70 साल की ज़िंदगी गुजारने के बाद कि 2 लफ्ज़ हैं हमारी ज़िंदगी में, एक लफ्ज़ है इज्जत और एक लफ्ज़ है लिहाज। हम में से बदकिस्मत वो लोग हैं जो किसी भी ओहदे पे पहुंच जाए और वो लिहाज को भी इज्जत से, लोग आपके वजू की वजह से, लोग आपकी अथॉरिटी की वजह से अगर आपका लिहाज करते हैं तो आपको वो बहुत से काम करने पड़ेंगे जिनसे लोग आपकी इज्जत भी करें। हम बहुत मुश्किल मरदा होता है किसी बड़ी जगह पे बैठ के, जब आप अभी जाएंगे बड़ी अथॉरिटी के साथ जाएंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपकी मदद करेगा, आपकी अथॉरिटी को नुमाया करेगा, तो पता चलेगा कि आपके पास बड़े हथियार हैं, तो लोग आपका लिहाज करेंगे। मेरे वो बच्चे जो आज यहाँ से पास आउट होकर आगे जा रहे हैं, अगर उन्होंने कभी बदकिस्मती से इस लिहाज को इज्जत समझना शुरू कर दिया तो वो उस बात से हट जाएंगे कि हमें इज्जत के लिए क्या करना चाहिए। जब भी मिसाल नहीं देनी चाहिए,
मैं आपको अपने छोटे से मिसाल देता हूँ कि मेरे सामने आने वाले तमाम लोग अदालत में पहुंच सर झुका तो वो मेरा लिहाज करते थे, मेरी कुर्सी का, मेरी सीट का लिहाज करते थे। मैं आपको हल्फन बताता हूँ कि मेरी इज्जत उन लोगों ने की है जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं, वो दिलों में पड़े हुए थे, जिनके मैंने सही फैसले किए। वो इज्जत है। अगर मैं उस लिहाज को इज्जत समझना शुरू कर देता तो शायद मैं वो इज्जत वाला काम ना करता। तो इसलिए आप सब लोगों के लिए मेरी एक और इसमें नसीहत ये है कि मेरे दोनों माँ बाप इस दुनिया से जाते हुए बहुत दिनों तक मैंने अपनी इमोशनल मजबूरी के तहत उनको वेंटिलेटर्स पे रखा। मेरे वालिद भी, मेरी वालदा भी बहुत ज़ईफ़ उम्र में उन्होंने वफात पाई। बहुत लंबी बीमारियां देखी उन्होंने, आखिर वेंटिलेटर तक जाना पड़ा। और एक बंदा मुझे पूरी जिंदगी में उनकी सारे मेरे पीरियड में नहीं मिला जिसने मुझे मायूस किया, जिसने मुझे ये कहा हो। मेरे किसी रिश्तेदार ने, मेरे किसी अजीज ने, हत्ता के डॉक्टरों ने मुझे ये कहा कि इंशाअल्लाह बहुत अल्लाह है। अगर हम अपने वालिदैन के लिए, अपनी औलाद के लिए वेंटिलेटर पे भी उम्मीद का सहारा नहीं छोड़ते, हम अपने इस मुल्क के लिए पूरी उम्मीद क्यों नहीं रह सकते? हम सब लोगों को जैसे भी हालात यही सोचना है कि हम लोग अपना खून दे देंगे, अपनी कुर्बानी दे देंगे, लेकिन अपने मुल्क को उस मुकाम पे ले जाएंगे कि जहाँ लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो, आप लोगों पे, आपके ओहदों पे आपकी ज़्यादा इज्जत हो। आप बहुत ज़्यादा काबिल इज्जत हैं, लेकिन वो जो मैंने तलाश की है लिहाज और इज्जत को गड़बड़ न करना, ये मैं आपको वास्ता देता हूँ। बाद में बहुत नुकसान होता है और वो नुकसान आपका ज़ाती नहीं होता, वो कौमी और इज्तिमाई नुकसान। जब मुझे ये लगे कि एक आदमी आता है वो मेरी अलग साफ करके रखता है, मेरे एक बंदा आता है जो कुर्सी पीछे से घसीट के मुझे बिठाता है और मैं उठता हूँ तो फिर पीछे से कुर्सी खींचता है। और अगर मैं उस बात को अपनी इज्जत समझकर शुरू करता तो फिर मैं वो काम कैसे कर सकता हूँ कि मुझे इज्जत दे? वो तो इतना ढेर है वहाँ के लिहाज का कि उसमें इज्जत और लिहाज गड़बड़। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपकी इंतजामिया का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे मौका दिया मैं यहाँ हाजिर हुआ। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आप लोगों से एक बार मिला हूँ और यह मुझे आप सबसे बहुत दिनों बाद मुलाकात। आप लोगों से मुलाकात होना, आप लोगों के साथ मिलना, आप लोगों की बातें सुनना, ये वाकई एक एहसास की बात है। आप हमारा मुस्तक़बिल हो, इसी की यकीन पे ये मशअल बदस जिंदा है कि सुबह दो का उजाला शरीफ से आप मिले। बहुत शुक्रिया।
सर्विसेज में एलोकेटेड हैं। करंटली आप असिस्टेंट कमिश्नर हरिपुर डिस्ट्रिक्ट हिमियर फ्रॉम में अपने सर्विसेज अंजाम दे रही हैं। प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर। Just a few things that I would like to tell my juniors who are here. First of all, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी मौजूदगी से हमारे इवेंट में 4 चांद लगे हैं। आप लोग हैं तो हमारा इवेंट है। CPI को हमने 5 साल पहले स्टार्ट किया था और बहुत सारे लोग अभी शायद मुझसे इंटरेक्ट नहीं किए होंगे बिकॉज जब मैंने सर्विस ज्वाइन की तो मेरा ज़रा अकेडमी के साथ ताल्लुक कम हो गया। मैं मौसम के हवाले अकेडमी करके चली गई। बट जस्ट कुछ चीज़ें मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि अब आपकी जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और सब्सिक्वेंटली जब आप सर्विस में जाएंगे तो कोशिश कीजिएगा कि जिन लोगों से आपका ताल्लुक सर्विस से पहले रहा है उनके साथ अपना ताल्लुक बरकरार रखें और उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, क्योंकि वो लोग आपके साथ जब इन टच रहेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे रियलिटी के अंदर। CSA के अंदर की 4 दीवारी आपको दुनिया का एक बहुत पॉलिश्ड वर्जन दिखाएगी जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। सो कोशिश कीजिएगा कि असल दुनिया के साथ अपना रास्ता किसी तरह इस्तवार रखिएगा। आपके बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स, हस्बैंड, वाइफ यहाँ पर मौजूद हैं। आपने प्लीज़ इनकी हेल्प करनी है अपने ताल्लुक रखने के अंदर। बहुत सारे मुश्किल लम्हात अभी इनके ऊपर आएंगे फाइनेंशियली, मॉरली, सोशली। आपने प्लीज़ इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। आई वॉज वेरी लकी कि आई वॉज अपना हस्बैंड भी ऑलवेज सपोर्टेड मी टू द सेकंड स्टेज ऑफ दिस सर्विस। और एक और चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब हम लोग थोड़ा सा भी सर्विस में सीनियर बनना शुरू कर देते हैं तो और फाइट जूनियर भी, लेकिन हम लोगों के अंदर एक टेंडेंसी आ जाती है कि हम अपने जूनियर्स को और कौन लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं। मेरे बैचमेट्स अभी रिसेंटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा जज कर रहे थे कि आप लोग सोशल मीडिया में एक सर्टन वे में आ रहे हैं और हो रहा है। मैं सिर्फ आपको ये कहूँगी कि जज करना किसी को भी बहुत आसान होता है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप किसी के साथ ताल्लुक रखें, उनको अपनी केयर के अंदर लेके एक रास्ता दिखाना शुरू करें अच्छे तरीके से कि अच्छा दिस इज द राइट थिंग टू डू एंड दिस इज प्रॉब्ली अ बेटर थिंग। सो ये वाला सिलसिला तो प्लीज़ चला के रखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता जब आपको लगे कि मैं आई एम प्रॉब्ली बेटर देन अदर्स, कोशिश कीजिएगा ये थॉट अपने ज़हन से निकाल दीजिएगा। मैं खुद को बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ कि मुझे कुछ ऐसे मेंटर्स मिल गए थे जिन्होंने मुझे हमेशा ऐसे थॉट प्रोसेस में जाने से रोका और हमेशा ह्यूमिलिटी की तरफ को लेकर आए। सर उनका मैं इतना शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे लिए बहुत इज्जत की बहुत बड़ी बात है कि सर अक्सर प्यार और बैठी हैं, मैम आसान है इस तरह बनना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने शायद मुझे शेप किया है कि दिस इज प्रॉब्लम द काइंड ऑफ थॉट जो आपका एडवाइस से जिंदगी की लेना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि ऐसे मेंटर्स को के साथ रास्ता से पार करें, उनको ढूंढें और उनके साथ पूरी जिंदगी जुड़े रहें। आपकी जिंदगी में कोई भी कैसा भी मुश्किल लम्हा आए, इनसे बात करें, मशवरा करें और जब आप थोड़े से भी जूनियर लेवल पे आए तो कोशिश करें कि मज़ीद जूनियर्स को अपने सर्कल में लेते जाएं सो दैट कभी भी कोई उस रास्ते की तरफ ना चले क्योंकि फर्दर इसकी वजह से हमारे आँख से लोगों को मुश्किलात का या उनके दिल में अगर थोड़ी सी नफरत भी आती है तो वो भी हमारी वजह से दैट नहीं रही। अरे बैड फॉरवर्ड आज सॉल्व कर सो अपना इतना ज़्यादा पर्पज और उतनी एफर्ट लगा सकती हैं। सो दैट इज ऑल। और मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए ओपन रहेंगे। आपसे बहुत सारा साथ टाइम मेरा पहले इंटरेक्शन नहीं रहा, पहली दफ़ा इंटरेक्शन हुआ। प्लीज़ कभी भी हेजिटेट ना कीजिएगा। आपको कभी भी ट्रेनिंग में या फॉरवर्ड फर्दर कभी भी किसी किस्म की मुश्किल हो, कोई भी कैसा भी मसला हो, आप मेरा नंबर ले सकते हैं, मेरे साथ हमेशा रास्ते रह सकते हैं। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग जब अपने से बहुत बहुत मुबारक और तमाम सीनियर्स का, तमाम जूनियर्स का सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेज के सामने तशरीफ ले आइए और हमारे सिक्योरिटी के और दूसरे मेहमान जो है वो स्टेज पर तशरीफ ले आइए ताकि हम एक ग्रुप फोटो बना सकें।